Good afternoon, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. As you all know that we have completed our connectivity chapter, and from today onwards we will make one mini project that will help you in making your final project. So without any further delay, let's get started. So this is the mini project and this is the code of the project. Now what I will do, I will run that. Now this window will come and here I will write my database username and here I will write the password. And here you are seeing that password is coming in the form of star. Now I will click on login and this message box will come that is saying that welcome root, you are admin. Now I will click on OK. Another window will come. Here we have 5 options: insert, update, delete, display and exit. And first I will click on insert, then another window will come and here when I click on exit, that window will be closed. Now coming on insert, here I will write any username like 35 and here I will write any name and I will take name Ajay. I will take any age like 43 and here I will click on sign up and it is showing me that data inserted successfully. Now if I check my database whether that entry is stored in a database is not. So my database name is Banner. So now my table name is student. So I will write the command select star from student and here you can see that the record is inserted 35 Ajay 43. This record is inserted. Now when I click on update and here I will write, let us suppose same roll number I will write and here what I will do, here I will change his name from Abhay and here it is showing me the message data updated successfully. And once again when I open and here I will write use banner and then select star from student and here you can see that roll number 35 is changed now. Now if I want to delete, I can delete same roll number, I will delete roll number 35 and it is also deleted. And when I again check my database here and I will write the command select star from and here you can see that there is no roll number 35 here and at the end if I want to display any particular record, so let us suppose I am writing 100 here, update. So here it is saying that data is not found and now I will write 5 here and then data updated successfully. It is showing wrong. Here आपको क्या आना चाहिए, data is present. Then when I click on OK तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये डेटा आपको शो हो रहा है. अब ये डेटा आपका किंटर विंडो में कैसे शो होगा, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ टॉपिक जो कि आपका ट्री व्यू की हेल्प से होगा, दैट आई विल टेल यू लेटर. तो फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट में इतना ही टास्क परफॉर्म करेंगे एंड नाउ एट द एंड व्हेन आई क्लिक ऑन एग्जिट सो माय प्रोजेक्ट विल बी क्लोज्ड. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू,
I will import the library. Okay, so to save the time, what I will do, I will copy these three and I will paste it here. And then what I will do, I will make the main window. This is my login page, and I will copy and I will paste it here. Okay, so here this is MySQL.connector, this is the Kinter, and this is for the message box. Okay, the use of this I will tell you later on. Here I will create the root window and I will set his geometry as 300 by 300 and I will give the title DBMS login page. Now I need two labels and two text boxes. So this is my label 1. Here the name of the test is username. I will place it. Then the entry box is username, and again my second label is password and I will place it here, and this is my second entry. And here you can see that in the password I have written star. So ये स्टार क्या करेगा, जो अभी आपका पासवर्ड आपको विजिबल हो रहा है अब वो किसकी फॉर्म में होगा, स्टार की फॉर्म में होगा. सो इफ इन योर प्रोजेक्ट कहीं भी अगर ऐसा है जहां पर आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो वहां के एंट्री बॉक्स में आप शो इक्वल्स टू स्टार कर सकते हो. ओके, नाउ द सबमिट बटन. हियर मैं इस लाइन को यहाँ पर कट करता हूँ फिलहाल, एंड हियर आई हैव क्रिएटेड दी बटन नेम इज लॉगिन एंड मैंने इसको प्लेस कर दिया है. नाउ व्हेन आई रन दैट एंड यहाँ पर आई विल राइट प्रोजेक्ट एंड ये एग्जैक्ट विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है. बट हियर अगर आप यहाँ पर रूट एंड 1 2 3 आप लिखोगे तो इट विल नॉट परफॉर्म एनी टास्क, बिकॉज ये सिर्फ क्या है, डिजाइनिंग पार्ट है. सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमांड इक्वल्स टू सब. अब जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूंगा तो ये सब फंक्शन कॉल हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सब फंक्शन पे आते हैं. सो यहाँ पर जो है इस सब फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ. अब ये जो टास्क है मैं इसके ऊपर करूँगा, बिकॉज जैसे फंक्शन यू नो डैट कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो फंक्शन कॉल से ऊपर होनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इनसाइड हियर. यहाँ पर जो भी यूज़र नेम वाला जो बॉक्स है, ठीक है, और जो पासवर्ड वाला बॉक्स है, ठीक, यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया था यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र एंड पासवर्ड, इनमें जो वैल्यू है दैट वैल्यू आई वांट. तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल लिख दिया यूज़र1 यूज़र नेम डॉट गेट पासवर्ड डॉट गेट, और ये वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी है किसमें, यूज़र और पासवर्ड वेरिएबल में. ठीक है, सो दिस आर द वेरिएबल्स जिनमें क्या है, जो भी आपने इनपुट की हुई है टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू वो इसमें स्टोर्ड है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो रहा है. सो ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर मैंने इफ और एल्स का यूज़ किया हुआ है सिंपली, कि अगर यूज़र जो है वो रूट है एंड द पासवर्ड जो है अगर वो 1 2 3 है तो ही हम कनेक्शन को क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली मैसेज दे देंगे कि यहाँ पर क्या है, रॉन्ग क्रेडेंशियल है. अब यहाँ पर क्या है कि आप जो मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो वो आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रिंट अगर आप करोगे तो आपके आइडियली में प्रिंट होगा. आप उस मैसेज को एक मैसेज बॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो. बहुत सारे मैसेज बॉक्स होते हैं, शो एरर होता है,
शो वार्निंग होता है, ठीक है, यस नो कैंसिल वाला भी होता है, बट सिंपली हियर हम इंफॉर्मेशन शो करना है, ठीक। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे, एक में जो टाइटल होता है वो टाइटल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा लाइक अलर्ट, और यहाँ पर ये मैसेज आपको शो हो जाएगा, ओके। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल का नाम है फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अगर आप ये इंपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, इट विल जनरेट द एरर, बिकॉज ये मैसेज बॉक्स मेन किंटर का पार्ट नहीं है। अगर आपको उसको यूज करना है तो यू हैव टू इंपोर्ट इट, ओके। सो ये टास्क यहाँ पर हो गया। सेकंड, अगर आपकी क्रेडेंशियल सही है तो क्या होना चाहिए, आपको ये मैसेज आ जाए, हालांकि ये मैसेज जो होगा ये आपका यहाँ नहीं आना चाहिए, बिकॉज अभी आपने कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया हुआ है। ये मैसेज आएगा जब आपका कनेक्शन प्रॉपरली स्टैब्लिश हो जाएगा। कंट्रोल कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे करना है, यू ऑल नो दैट db इक्वल्स टू mysql.connector.connect, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, और यहाँ पर यूएसआर यूजर में हमने ये वाला वेरिएबल की वैल्यू ली हुई है, और पासवर्ड में हमने ये वाली वैल्यू ली है, और यहाँ पर हमने डेटाबेस भी यूज किया हुआ है। डेटाबेस आप पूरा भी लिख सकते हो और खाली डीबी भी लिख सकते हो, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम मेरा बैनर है, ठीक है। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा सक्सेस वेलकम। आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो वेलकम, ओके। बट आई वॉन्ट कि वेलकम विंडो पे उस यूजर का नाम भी शो हो जो कि क्या हो रहा है, वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एफ स्ट्रिंग का यूज किया है वेलकम, एंड यहाँ पर मैंने देन करली ब्रेसेस का यूज किया है, और यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल जिसमें मेरा यूजर नेम स्टोर है वेलकम, और यहाँ पर उस यूजर का नेम लिख लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ रूट डॉट डिस्ट्रॉय। अगर मैं रूट डॉट डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल विंडो आपकी ओपन होती चली जाएंगी, ओके। आई वांट कि अब जो जैसे ही आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपकी जो एग्जिस्टिंग विंडो है दैट विंडो विल बी क्लोज्ड एंड न्यू विंडो विल ओपन। तो आपकी ओरिजिनल विंडो को अगर आपको क्लोज करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट रूट डॉट डिस्ट्रॉय। जैसे ही इमीडिएटली आप ये लिखोगे तो क्या होगा, वो वाली विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी और नई विंडो आपकी ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने जो फंक्शन कॉल किया है कट फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, आपके लिए एक न्यू विंडो यहाँ पर बनाएगा। अभी मैं आपको कट कर दूं और रन करूं प्रोग्राम को। सो हियर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रूट एंड यहाँ पर कोई भी रॉन्ग पासवर्ड लिख रहा हूँ लेट अस सपोज, तो इट इज शोइंग रॉन्ग क्रेडेंशियल, एंड हियर अगर मैं करेक्ट पासवर्ड दे रहा हूँ तो इट इज शोइंग वेलकम रूट, और ये आपका सक्सेस जो ऊपर टॉप में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पैरामीटर में आप जो वैल्यू दोगे आपको यहाँ लिखी हुई आ जाएंगी, ओके। नाउ व्हाट आई वांट कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो ये वाली विंडो क्लोज हो गई और न्यू विंडो आपकी ओपन हो जाए जिसमें आपके क्या हो वेरियस आपके क्या हो ऑप्शंस हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, कर्ड फंक्शन का यूज किया हुआ है। अब अगर हम कर्ड फंक्शन को देखें कि कर्ड फंक्शन एक्चुअल में क्या है, तो हम आते हैं कर्ड फंक्शन की ओर। दिस इज आवर कर्ड फंक्शन एंड मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड अब ये कर्ड फंक्शन अगर मैंने कॉल किया है तो इसकी डेफिनेशन इसके ऊपर होनी चाहिए, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेफिनेशन फंक्शन के ऊपर इस कर्ड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अब कर्ड फंक्शन में मैंने क्या किया हुआ है, एक दूसरा विंडो बनाई हुई, उसका नेम क्या है page 2, and I have set the geometry of page 2. I give the title, and here I need 5 buttons simply, तो button 1, button 2, button 3, button 4 and button 5. So this button is for insert, this button is for update, this button is for delete, this button is for display and this button is for exit. Now button अभी कहाँ पर प्लेस हो रहा है, पेज 2 पे हो रहा है, तो आई विल राइट पेज 2। टेक्स्ट उसमें आप में इंसर्ट हो गया, आपने विड्थ उसकी सेट कर ली। अब आप यहाँ पर इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। देखिए अगर आपको थोड़ी फॉर्मेटिंग देखनी है तो आपने फॉन्ट इक्वल्स टू लिख दिया, फॉन्ट में आप पहला उस फॉन्ट का नेम आप लिखोगे, यहाँ पर मैंने चेलर यूज़ किया है, आप एरियल यूज़ कर सकते हो, आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर सकते हो, आप कैलिब्री यूज़ कर सकते हो।
देन उसका साइज कितना है 18, आप वो सेट कर सकते हो, और आपको बोल्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है, ये आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब BD मीन्स होता है बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर देना है अपने बटन के चारों ओर तो आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आप मैंने बॉर्डर दिया हुआ है तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए आप BG यूज कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड यूज किया हुआ है स्काई ब्लू, ठीक है। अब एक्टिव बैकग्राउंड एंड क्या होता है कि जो आपको परसेंटली दिख रहा है, एंड आपने उसको सेट कर लिया है ब्लू। एंड रिलीफ आप करोगे तो ये भी एक इफेक्ट है जो आपको वहां पर प्रोवाइड करके देखने को मिलेगा। एक्टिव फोरग्राउंड मैंने यहाँ पर व्हाइट यूज किया हुआ है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कौन सी कमांड यूज होगी, अभी मैं क्या करता हूं, इन कमांड्स को यहाँ पर हटा देता हूं, ठीक है। इस कमांड को मैं यहाँ पर कट कर देता हूं और इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, रिमूव। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग। अगर आप इन फॉर्मेटिंग को यूज करना चाहते हो तो आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, वन बाय वन व्हेन यू अप्लाई, और आपको अपने उस बटन में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, बट यहाँ पर मेरा टास्क फॉर्मेटिंग बताना नहीं है, माई टास्क इज कि आपके प्रोग्राम में फंक्शनैलिटी कैसे आए, ठीक। सो यहाँ पर फिलहाल हमने ये बटन, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। एंड एक लास्ट पॉइंट, अगर आपको एग्जिट बटन बनाना है तो उसके लिए आप सिंपली एक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई फंक्शन बना के कॉल नहीं करना है, आप सीधे लिख सकते हो कमांड पेज टू डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, जिससे क्या होगा वो पेज आपका क्लोज हो जाएगा। एंड व्हेन आई रन दैट कोड एंड हियर आई विल राइट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन, वेलकम, एंड देन दैट पेज विल कम। ओके, यहाँ पर आपको बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है एवरीथिंग। अब आप किसी भी बटन पर क्लिक करोगे तो इट विल नॉट परफॉर्म एनी फंक्शनैलिटी, बट एग्जिट करेगा। एग्जिट क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। ओके, एंड नाउ टुडे वी विल ओनली सी कि हम किस तरह से डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड यूज करेंगे साइन अप विंडो, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन हम क्लिक करेंगे तो साइन अप विंडो फंक्शन कॉल होगा, तो मुझे इस कर्ट से पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे आते हैं एंड यहां पर हम कॉल करते हैं दिस इज द डिस्प्ले, दिस इज द अपडेट, एंड दिस इज द डिलीट, दिस वन इज sign up window. Okay, now what I will do, I will simply copy that function. although आपको एक कोड बहुत लॉन्ग लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। अभी आई विल एक्सप्लेन द होल कोड टू यू। सो कर्ट से ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको कॉल कर दिया। नाउ कमिंग टू द डिजाइनिंग पार्ट, यहाँ पर मैं एक और विंडो बनाऊंगा, दैट इज रूट 2if इस फंक्शन के अंदर है। इस फंक्शन का इंडेंट यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको ऊपर वाला कोड नहीं देखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने अगेन क्या किया हुआ है, रूट बनाया हुआ है, उसकी ज्योमेट्री को सेट किया हुआ है, एंड टाइटल सेट किया हुआ है साइन अप पेज। देन आई नीड 2 लेबल्स, एक लेबल आपका एंटर रोल नंबर, सॉरी आई नीड 3 लेबल्स, एंटर रोल नंबर, एंटर नेम एंड एंटर एज। और उसी के आगे मुझे क्या चाहिए, मैंने इनको क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। नाउ सेकंड, यहाँ पर मैंने सेकंड वे यूज किया हुआ है, यहाँ पर मैंने प्लेस यूज ना करके ग्रिड यूज किया हुआ है। ग्रिड आपको लिबर्टी देता है कि आप क्या करोगे, टेबल की फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके टेक्स्ट बॉक्स या लेबल्स को प्लेस करने के लिए, थोड़ा कन्वीनियंट है, आप ग्रिड का यूज कर सकते हो।
बट ये एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट आपका एक्स और वाई वाला ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि रो, अगर आपको क्या चाहिए कि यहाँ पर दोनों के जो लेबल है वो क्या होना चाहिए, सेम आने चाहिए। तो आप क्या करोगे, उनके कॉलम जो है वो सेम रखोगे, कॉलम इसका भी 1 है, कॉलम इसका भी 1 है। सिंपली क्या चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं और यहाँ पर एक्सेल को ओपन करूं, सो जिससे थोड़ा आई होप क्लियर होगा आपको ग्रिड फंक्शन। दिस इज माय एक्सेल एंड सो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा नाउ दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। सो अगर आप यहाँ पर, ये आपकी रो है, अगर आपको इसी के इमीडिएट नीचे चाहिए तो आपका कॉलम तो सी सेम रहेगा, दिस इज द कॉलम एंड दिस इज द रो। अगर आपको लेबल यहाँ पर चाहिए एंड बॉक्स टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर चाहिए, सो हियर आपकी क्या होगी, रो, ये रो कितनी है 1 कॉलम 1, ये रो 1 कॉलम 2, ये रो 2 कॉलम 1 और ये रो 2 एंड कॉलम 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इसको एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। तो यहाँ पर मैंने लेवल बना लिया एंड मुझे क्या चाहिए, सेम रो पे सेकंड कॉलम पे उसका टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अगेन मैंने एक लेवल बना दिया नेम, जो कि आपकी सेकंड रो पे होगा कॉलम 1 पे, कॉलम 2 पे क्या होगा, रो की टेक्स्ट बॉक्स होगा। इन अ सेम मैनर एज इज द लेबल विच इज ऑन रो 3 कॉलम 1 एंड इन कॉलम 2 यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा। एंड उनके नेम आप देख लो, क्योंकि हमें मेन टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मैंने ENT रोल यूज़ किया हुआ है, ENT नेम यूज़ किया हुआ है और ENT एज यूज़ किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर बटन बना दिया, बटन मेरा साइन अप है और उसमें टेक्स्ट साइन अप है, और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, sub2 फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। और एक और बटन मैंने बनाया हुआ है एग्जिट, जो कि क्या कर रहा है, सिर्फ रूट 2 को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाउ इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप एक बार बटन आपने सेट कर दिए तो आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके उसकी जो सेटिंग है, फॉर्मेटिंग है, वो आपके एक साथ वहां पर आ जाती है, ओके। सो मेन हमारा टास्क कब होगा, जब हम साइन अप का बटन प्लेस करेंगे, और जैसे साइन अप का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, sub2 फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे sub2 फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन को मैंने इसी के इनसाइड बनाया है, मैंने इसके आउटसाइड नहीं बनाया है। द रीज़न इज दैट, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनकी वैल्यू को अगर मुझे चाहिए तो मैं इस फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इस sub2 को यहाँ ना बना के इसके बाहर बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ sub def sub2, ओके। और ये लिखने के बाद अगर मैं ये लाइन यहाँ लिखूँ, इन तीनों लाइन को क्या करूँ, यहाँ लिखने का ट्राई करूँ, सो ये मुझे एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फॉर ये जो फंक्शन है और ये साइन अप वाला फंक्शन है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। और इसमें ये जो है, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस लेबल, ये जो है, ये सारे के सारे इसके लोकल वेरिएबल है। अब मुझे इस बॉक्स में जो वैल्यू इंसर्टेड है, अगर ये वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इस फंक्शन के बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक। तो इसीलिए क्या होगा कि मैं इसको इसके बाहर नहीं करूंगा, ये जो इसके अंदर एक और फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इसको इंसर्ट करूंगा। क्योंकि जो अगर आपने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है, तो जो आउटसाइड वाला जो फंक्शन है, उसके जो वेरिएबल होते हैं वो इनर वाले फंक्शन के इनसाइड क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, उसका स्कोप, ठीक है। बिकॉज इसके लिए क्या है, इस फंक्शन के लिए ये जो आपके ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये क्या है, ऐसा ग्लोबल की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है स्कोप का, वो क्या होता है, LEG और B होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है, ये कौन सा, इन्वायरमेंटल होता है। लोकल स्कोप आपको पता है, ग्लोबल आपको पता है, बिल्ट इन आपको पता है। आप जो इनपुट यूज करोगे वो क्या होगा, आपका एक तरह से बिल्ट इन स्कोप हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्कोप आपका क्या होता है कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया है, जो आउटर साइड के फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। तो जो मैं इस साइन अप विंडो के अंदर जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा, वो sub2 के अंदर क्या होंगे,
एक्सेसिबल होंगे, बट सब2 के अंदर जो वेरिएबल मैं बनाऊंगा वो इसके आउटर वाले फंक्शन साइन अप विंडो में एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक, तो फिलहाल ये जो ANT रोल, ANT नेम, ANT एज, ये क्या है, इसके आउटर फंक्शन में यूज हुए हैं, तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने डॉट गेट लगा के इनको एक्सेस कर लिया है और इनको रोल, नेम और एज में स्टोर कर दिया है। नाउ ये वैल्यूज मेरे पास आ गई और यहाँ पर मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बस कॉपी और पेस्ट कर लिया जो मैंने इनिशियली स्टैब्लिश किया था। अब what I will do next, I will create the cursor object and here I will write the query insert into student roll number name age and here values are that। फिर मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पर इसको कमिट किया। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो क्या कर सकते हो, एक लाइन यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जो mydb.commit इक्वल्स टू ट्रू, बट अगेन मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बार भी मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। ठीक, तो इसलिए मुझे अगर आपको बार बार ऑटो कमिट ट्रू लिखना पड़ेगा, उससे बेटर क्या है कि आप इसको यहाँ पर कमिट कर दो। ओके, कमिट यूज करते हैं डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और जब भी कमिट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंपल मैसेज आ जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो सक्सेस डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और जैसे ही ये आपका मैसेज आ जाए तो आपकी जो विंडो है रूट 2 वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, सो आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ व्हेन आई रन दैट कोड एंड हियर आई विल राइट root 1 2 3 login and here insert and here I can write any roll number, like I will write 78 and here I will write Gunjan name and here I will write 22. Okay, or when I do sign up तो it is showing the message data inserted successfully। अब हम देखते हैं क्या ये एक्चुअल में हुआ है। उसके लिए हम again 1 2 3 use banner and then I will write select star from student। okay, and here 78 गुंजन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपका प्रॉपरली इंसर्ट हो गया और आपकी वो विंडो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई, आपको मैन्युअली नहीं करनी पड़ी। अगर आप चाहते हो एक और इंसर्ट करना चाहते हो मैन्युअली तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं और एग्जिट पे क्लिक करूं तो आपका वो वाली विंडो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कि ये जो आप जैसे क्लिक कर रहे हो ये चेंज हो रहा है ना, तो ये चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सेटिंग जो मैंने वहाँ पर करी हुई है इसके अकॉर्डिंग। और जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट कलर आ रहा है। ठीक है, तो वही एक्टिव फोरग्राउंड और एक्टिव बैकग्राउंड जो मैंने सेट किया था वो इसलिए हो रहा है कि जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है उसका, और एग्जिट करोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक, सो इवेंचुअली आपको ये जो देखने को मिल रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या किया हुआ है बटन्स में ये एक्टिव फोरग्राउंड आपका वाइट है, तो आपको जो भी ठीक है एक्टिव बैकग्राउंड, क्योंकि जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है ब्लू हो जा रहा है, और एक्टिव फोरग्राउंड में जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका इसलिए हो रहा है। और रिलीफ मैंने ये सिर्फ क्या करता है आपको एक थोड़ा सा और एडिशनल फीचर देता है, अगर आप चाहो तो उसको यूज़ नहीं भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस आई होप कि ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे। सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप लर्निंग।